Religious music today has been redefined and reshaped. What was once made famous by the likes of Narendra Chanchal and Gulshan Kumar and played inside our homes is now played at religious rallies with excessive beats and auto tunes. But there is another ingredient pertinent to making these tracks popular, and that ingredient is hate. राम लला को छोड़ के अल्लाह अल्लाह गाओगे। अवध में दर्शन पाना है, राम मंदिर बनवाना है। हाथ में भगवा उठा के बोलो भक्त है श्री राम के, राम के, राम के, राम के। Many artists like these, born and raised in small towns of India, are now releasing tracks that have a similar agenda. This is what they call the protection of Hindus and raising awareness about a Hindu Rashtra. With lyrics that boast about Hindus being Babbar Sher or telling them to be ready for a war, these songs often end up targeting India's minorities and make an effort to strengthen what they call Hindu pride. However, the real life impact of this type of music, which got popular in the last few years, is visible in multiple states of India now. This week, Delhi's Jahangirpuri witnessed clashes between the Hindus and Muslim members of the area. In the videos that have gone viral, both the communities can be seen armed with multiple weapons. However, in another viral video, a Shobha Yatra procession can be seen passing from in front of a mosque with one particular song blasting on its speakers. भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा. This song can be heard playing as the procession passes through the lanes of Jahangirpuri as men of all ages dance and raise weapons. Similarly, the clashes in Khargone this month also took place after another religious procession of the Hindus stopped in front of a mosque and allegedly blasted similar music. पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तोड़े गए जितने मंदिर हम उनको फिर से बनाएंगे। क्या तेरा अल्लाह कहता है तू मंदिर तोड़े, फिर मथुरा में तूने क्यों न प्रभु के घर छोड़े। कव्वाली करने वाले भी अब भजन राम के गाते हैं, कहते हैं अल्लाह मालिक है पर घर श्री राम चलाते हैं। हमारे धर्म के ऊपर अगर कहीं से आघात हमें नजर आता है। Singer and songwriter Sandeep Acharya's videos have received millions of views ever since he first started uploading his songs on YouTube. A student of Yati Narsinganand, Acharya is also linked to Yogi Adityanath's Hindu Yuva Vahini. जब किताबें यही सिखाती हैं उनकी, तो और उनसे आशा कौन सी की जाएगी? आप ये बताओ ना। जहाँ तक हम लोग जानते हैं उनकी किताबें ही यही सिखाती हैं। उनकी आबादी, जहाँ आप देख लीजिए भारत में जिस जगह पर उनकी आबादी ज्यादा है वहां पर हिंदुओं का जीना रहना दूभर है। जहाँ पर कम आबादी है वहां शांति से भाईचारा निभा रहे हैं, और जहाँ पर आबादी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है वहां पर हिंदुओं का रहना जीवन दूभर कर दे रहे हैं। मैं संदीप आचार्य, राठ हवेली अयोध्या वासी, हिंदू शेर अमन मौर्य जी के सौजन्य से ये हिंदूवादी गीत गा रहा हूँ। इनकी 5 पुस्तक खोजो तो सवाल निकलेंगे, इनके दादा या परदादा राम लाल निकलेंगे। जैसे आपने गाने का बोल बताया कि इनके दादा परदादा रामलाल निकलेंगे, तो जो टोटल यहाँ के लोग धीरे धीरे इस्लाम जो हिंदू स्वीकार किए हैं उनको, और आप क्या बोलेंगे कि आपकी 5 पीढ़ी के पहले हिंदू ही थे, आप 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले आप हिंदू ही थे। ये उस गाने को गाने का मतलब और कहने का मर्म एक ही यही था और कुछ नहीं था कि आपके पूर्वज हिंदू ही। जहाँ हमारे धर्म के साथ अन्याय हुआ है वहां पर हम आवाज उठाना चाहेंगे ना। This ecosystem of hate music receives millions of views on YouTube every day. The songs sometimes boast of Hindu pride and the other times target the minority with slurs that are enjoyed by many.
Mojo Story also spoke to Pooja Gulhani and Nandu Tamrekar, the people behind the song that contributed to the tensions that arose in Delhi. हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. This is what the singer and writer of the controversial song told Mojo. मैम एक्चुअली आप भी इंडियन और मैं भी इंडियन हूँ, सॉरी टू से. उस गाने में कुछ ऐसा गलत तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है मैम. हम खुद मतलब जो आप कह रहे हो वहाँ पे जो मस्जिद के सामने ऐसी बात हुई है, मैं खुद, मेरा डीजे भी जाता है, इनका प्रोग्राम होता है अपने मुस्लिम में 12 वफात कुछ बोलते हैं, उसमें भी मेरा डीजे जाता है. वो हमारे त्रिलोकपुरी में रैली निकलती है तो उसमें हम इनके सॉन्ग प्ले करते हैं. हमारा तो मैम काम है, हमें जो जैसे आप बुलाओगे तो हम आपके सॉन्ग्स प्ले करेंगे, कोई भी अदर पार्टी बुलाएगी हम उनके सॉन्ग्स प्ले करेंगे. This is Amit, a disc jockey by profession who happened to be in Jahangirpuri the day clashes broke out. Amit played a rally that passed through the area in the early afternoon. धार्मिक उन पे जिन पे भी जाते हैं, आपको पता है रोड शो के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है, जितनी भी होती है हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है. और मैं 90 से 100%, मतलब 100 तो नहीं कह सकते, एक दो बार हो जाता है, बट 90% मेरे पास रिस्पेक्टेड SDM सर की परमिशन होती ही होती है. जिस लोकेलिटी में मैंने वो अपनी रैली निकालनी है उसमें परमिशन होगी और पुलिस प्रोटेक्शन होगी. तो मैम कुछ ऐसा ऑफेंसिव वगैरह कुछ नहीं चलता. जैसे अभी लास्ट में शो करके आया हूँ, ये इधर रोड शो हुआ था हमारा महावीर जयंती पे बजरंगबली की, उसमें सिर्फ सिंपल बजरंगबली के गाने चले थे और कुछ नहीं. ये सब चीज़ें मेरे सामने तो नहीं हुई, बट हाँ मैं गया था वहाँ पे उस एरिया में ही, और मेरी रैली 10 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हुई थी और 2 बजे एंड हो गई थी. मेरी रैली में रिस्पेक्टेड SHO सर और उनके कांस्टेबल वगैरह, उनका स्टाफ पूरा था मेरे साथ, क्योंकि मेरी रैली में क्राउड 600 पर्सन्स के पार ही था. इतना मुझे ध्यान है, बहुत बड़ी रैली थी वो उस एरिया की. एंड ऐसा कुछ नहीं था मैम, हम लोग मतलब हर एरिया से गए थे, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेना नहीं चाहता, हर एरिया से गए थे और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. Amit tells us that it is common for him to play such song at his rallies, and it is often asked by those participating to increase the volume when they pass through sensitive areas. तो आप भी क्या अपनी रैली में अगर आप किसी सेंसिटिव इलाके से निकल रहे होते हैं तो तब आपको लोग बोलते हैं कि आवाज़ बढ़ाओ, आवाज़ बढ़ाओ? हाँ ऑब्वियसली मैम, बोला तो जाता, बट लेकिन हमें अपनी लिमिट्स पता होती है ना कि हमें क्या चीज़ चलानी है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं. ये सब चीज़ें तो मैम खुद ध्यान देना होता है ना, तो हम अपना अकॉर्डिंग ही चलते, हम किसी की मानते नहीं है ऐसे. Another disc jockey, Kuldeep, who plays music at multiple academic institutions during their functions, tells us that these songs are a rising phenomena among many young students. तो सर मैं ऑक्स पकड़ा देता हूँ सीधा कि भाई अपने आप बजा लो जो बजाना है, हम नहीं बजाएंगे. मैं इतना कर सकता हूँ. मैं तो बोलूँगा आप अपने फ़ोन से चलाओ जो चलाना है. अगर आप गलत चला रहे हो तो फिर मैं उसको बंद कर सकता हूँ. अगर कोई सामने कोई प्रॉब्लम हुई तो, जब तक कोई है नहीं तो मैं तब तक चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. अगर मैं उधर होता देखो सर, एक तो डीजे में पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है आगे क्या नहीं चल रहा. हमें तो सिर्फ गाने से मतलब होता है. हम नीचे बैठे होते हैं डीजे पर, नीचे से हम गाने चलाते रहते हैं, जो बोलेंगे भगवान के गाने चलाने. अब बीच में हनुमान चालीसा चल रही थी, तो जब नमाज पढ़ रहे थे उसी टाइम भी चला रहे थे थोड़े, तो वो भी गलत था थोड़ा. The symbiotic relationship between hate music and communal clashes in the country continues to strengthen, as India witnesses clashes on a weekly basis. A question pertinent to answer today is if these tracks are the latest weapons to threaten a minority that seemingly appears to be at a risk already. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.